Theatre of the Oppressed is a form of popular community-based education that uses theatre as a tool for transformation. It is about analyzing rather than accepting, questioning rather than answering. It is also about acting rather than just talking. With this idea, we present before you a short role play on a common scenario in practice nowadays. मम्मा मेरी एमबीबीएस पूरी हो गई और मेरे को एमएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिली है मेरे ड्रीम कॉलेज में। मुझे तुम पे बहुत गर्व है कार्तिक, तुम बहुत अच्छे सर्जन करोगे। देखो तुम्हारे पापा ने तुम पे बहुत पैसे लगाए हैं, तो मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ मम्मा, ये सब आपकी ब्लेसिंग ही कारण नहीं है। अच्छा मम्मा, मेरा कॉलेज का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। Good morning students. So already 10 minutes हो गया, अब और किसी ने तो नहीं आना? So let's start with today's topic. So today's topic is Fellows Technology. मैं कभी Yes? हाँ जी, क्या टाइम है? Already 10 minutes हो गए। ये टाइम है क्लास में आने का? मम्मा रास्ते में ट्रैफिक था। That's not my problem. That's your problem. 9 o'clock means 8:45. Now get out. Go to the HOD office. I'm calling sir. सॉरी मैम। मैं कम इन सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। सर वो मैम ने ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर वो रास्ते में ट्रैफिक था। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਲੇਟ ਜਾਇਓ ਫਿਰ सॉरी सर। ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। सर आगे से नहीं होगा। ਪੰਚੁਅਲ ਰਹੋ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ BA MA ਕਾਲਜ 'ਚ। ਸਰਜਨ ਬਣਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Yes, sir। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। कौन आ? Sir, I got admission in MS first year in this college. अच्छा फिर Sir, this room is ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? सर मुझे लगा अंदर कोई होगा नहीं। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ? ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ ਰੂਮ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਦੋਂ ਲਾਈਟਸ ਆਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਫ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ? ਚੱਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਕੀ ਹਾਲ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਲਾਰੂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਚੇਅਰ ਲਿਆਓ। ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਹਰਮੋਹਿਤ। ਇੱਧਰ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? डॉक्टर कार्तिक। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। कार्तिक, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ? ABC मेडिकल कॉलेज। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੈਬ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਏਮਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਤੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ? ਟੋਪੀ ਕੀ ਪਾਈ ਸਿਰ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਇੱਥੇ। ਚਲ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰ ਚਾਹ ਲਿਆਓ। डॉक्टर साहब देखो मेरी पैर को की हो गया, कितना खून निकलता है। ओह, तुसी आगे आओ, आगे आओ। आ जाओ, आ जाओ। अब बैठ। तुसी बाहर वेट करो, उसे देखते हैं। हाथ पास करो, मार ही देगा तू। की करा एक्सक्यूज मी। वहाँ पे ना एक पेशेंट आया, उसके इंजरी हुई है हेड पे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक बार देख लो।
नाम है तुसी? MS फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई है मेरी। जाके डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब होते ना एक पेशेंट आया, हेड इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, करी देख लो। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। डॉक्टर साहब इन्होंने दोनों ने तो मार ही देना सी मैनू, पता नहीं कुछ आंदा भी है कि नहीं। ਸਿਸਟਰ ਓਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਲੱਡ ਲਾਓ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਵਾਈਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ MBBS ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ MBBS ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। सॉरी सर। ਸਿਸਟਰ कुछ नहीं ਜਲਦੀ आता इन्होंने। ਜਲਦੀ ਸਟਾर्ट। मैं सारी सूचरिंग कर लूँगा, आज सीख के रहूँगा। तो क्या वो मेरे को आज नहीं आती? मैं सारी सीखूँगा, उनसे बेटर बन के दिखाऊँगा। हो गया काफ़ी कुछ, अब मैं कर सकता हूँ आराम से। सूचरिंग करनी पैनी है पेशेंट दे। ਉਹ ਬੁਲਾਓ। ਕੱਲ तो ਤੋਂ बड़ा ਬੜਾ सूचरिंग नहीं ना होती सी? सर मैं की है प्रैक्टिस। ਕੱਲ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹੈੱਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਆ चला ਜਾ, के गाड़े पे ਬੀ ਫਾਸਟ। आ गई है इदा हथ कंबदे ने डॉक्टर दे, पता नहीं MBBS की सीख के आए ये सर्जरी क्यों लई है? कोई होर ब्रांच ला लेंदे हथ कंबदे तो। ਤੁਸੀਂ MBBS ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। बहुत डॉक्टर बनता सी रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੈਟ ਆਊਟ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ। हेलो। हेलो मम्मा। हेलो कार्तिक, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? मम्मा मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा तुझसे? मम्मा मैं सर्जरी नहीं कर सकता। क्या हो गया? किसी टीचर ने कुछ बोला? पहले तो लड़कियों की तरह रोना बंद कर और चुपचाप मेरे को बता हुआ क्या। मम्मा मैं घर आ रहा हूँ। ऐसे मुंह उठा के अब घर आ रहा? तेरी पूरी MBBS, उसके बाद तेरी MS, अब ऐसे बीच रास्ते में सब छोड़ देगा? मम्मा सब कहते तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कुछ भी नहीं आता, बेसिक्स तक नहीं आते हैं। तेरे पापा ने इतनी मुश्किल से तेरी MBBS की फीस भरी, तेरे MS कॉलेज का खर्चा, तेरा हॉस्टल का खर्चा। अभी 2 महीने पहले तो तेरे को नई बाइक लेके दी है। तेरे को पता ना तेरे पापा की इनकम कितनी है? हम कुछ इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी तू बता तेरे को किस चीज़ की कमी रखी है हमने? तेरे रूम में AC है, तेरे को हर कंफर्टेबल चीज़ प्रोवाइड की, और तू कह रहा है हमसे होगा नहीं? मम्मा मम्मा सब लोग कहते हैं तू चला जा, बस बाहर चला जा, यहाँ मत रह, तेरे को कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं हैंडल कर सकता। गलती तेरी ही होगी। अब तेरे को नई बाइक लेके दी है, तेरे को बस घूमने की पड़ी होगी। जब पढ़ेगा नहीं तो अगले दिन तो टीचर से डांट पड़नी ही है। अब ये रोना बंद कर और चुपचाप पढ़ाई कर। रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी मैं? तू तो हमारी नाक कटवा देगा। मैं बड़ा सीना चौड़ा करके खुशी से सबको कहती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने वाला है, और ऐसा डॉक्टर बनेगा तू। और अब रोना बंद कर, पढ़ाई कर। रात को तेरे पापा आते हैं ना तो वही सीधा करेंगे, तेरे को उनसे बात कराती हूँ। सच ही कहते हैं शायद ये सब कि मैं सर्जन बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, बस का नहीं है ये मेरे जो मैंने चुन लिया। प्रोफेसर, टीचर, सीनियर, जूनियर, डीन्स, नर्सिस सब मेरे को यही कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता। शायद मेरे सपने इतने बड़े थे जितने मैं उसे पूरे नहीं कर सकता था। शायद मैंने अपने पेरेंट्स के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। शायद मैंने अपनों के और अपने सारे सपने तोड़ दिए। क्या कर रहा हूँ मैं घर आना चाहता, सब छोड़ देना चाहता। And one is the one who is getting oppressed. Okay? So what could we change in this situation?
और somebody can intervene because ना oppressor change होने वाला है, ना जो oppress हो रहा है वो change होने वाला है. क्या change कर सकते हैं? बताओ. Behavior of जो oppress कर रहा है वो change हो सकता है. क्यों है कि oppressor ऐसे act क्यों कर रहा था? Superiority होती है. Yes, he is right. क्योंकि because they feel that they are superior than whatever जो first year PG आया उसके साथ. क्यों feel करते हो ऐसा कि superior है? हाँ, एम से आए हैं. Okay, they are from a better medical college. Rest बताओ बेटा. Seniority. Do you feel कि senior होना आपको एक edge दे देता है दूसरे बंदे के ऊपर? So you can behave in whatever way you want to. So one point raised was कि they are superior actually because they are from a better medical college, and second point raised was कि they are seniors and seniors are whatever they want to, है ना? Anything else, Neera? मैम उन्होंने भी कभी ना कभी इस चीज़ को सहा होता है, तो वो उनको लगता है कि जो हमारे साथ हुआ है हम उनके साथ करें. Yeah, that's it. That's what culture. It becomes your culture कि तुमने इस तरह act करना ही है, क्योंकि नहीं करोगे तो you are actually not being a part of something. Even if someone feels कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तब भी वो ऐसा act करते हैं, right? और बेटा आप बताओ, you tell me, what do you feel? कि क्या चीज सिचुएशन थी कि इसी कारण प्रेशर ऐसा एक्ट कर रहा था? Who were the pressers in this case first of all? Only seniors. Seniors, nurses and teachers or mother. So you think the whole situation, teachers, seniors, sisters, HOD or mother even, they were part of the problem. They were the ones who were oppressing that person, right? Mother क्या कर रही थी ऐसा? बेवजह. Was it बेवजह? इतना बच्चे को नहीं डांटना चाहिए. डांटते हैं वैसे? पेरेंट्स कर देते हैं. क्यों करते हैं वैसे? पेरेंट्स का पहला डायलॉग होता है कि हमने इतने पैसे भरे थे. इतने पैसे भरे. Why they do it? क्यों पैसे भरते हैं? बच्चे के लिए करते हैं कि वो पढ़ ले, अच्छा कमा. Is it for them they are doing this? नहीं, पेरेंट्स की अपने भी होते हैं कि हमारा नाम हो सोसाइटी में. Because of that only they do it. You feel, all of you feel that कि parents सिर्फ इसलिए हमारा करते हैं ताकि उनका नाम हो सोसाइटी में. What do you feel? Why do you think parents do this? Okay, betterment of us only. आपकी betterment के लिए ही parents इतनी बार बोलते हैं, right? But still we behave in a certain way. बताओ बेटा क्यों? You laugh at such situations. I don't know if it was laughable or not. It was your colleague, इसलिए तुम लोग हंस रहे थे क्योंकि वो कैसा कर रहा है and all that, maybe उसके लिए. But were you laughing at the situation also? Do you think that ये ठीक हो रहा है? अगर कल तुम्हारे सामने ऐसा हो रहा हो, what do you do? हमने ये बात कर ली कि ये सारे ऑपरेसर्स हैं, ये लोग क्यों एक्ट ऐसे कर रहे थे. आपने बताया कि उसके सीनियर्स इसलिए एक्ट कर रहे थे बिकॉज दे फील दैट दे आर सुपीरियर, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्चर. यस, मदर इसलिए एक्ट कर रही थी बिकॉज दे एक्सपेक्ट देम टू बी इन सर्टेन काइंड ऑफ वे एंड वो उनको नहीं मिल रहा है और इसलिए वो उसको ऐसे एक्ट कर रहे हैं. दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. दे जस्ट वांट कि क्यों नहीं, हम लोगों ने भी तो ऐसे किया था, तो अब ये क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट? बट तो तुम लोग क्या करोगे इस सिचुएशन में? अगर तुम सीनियर होते, अगर तुम मदर होते या अगर तुम कुछ और होते? बोलो बेटा. You tell me what will you do? I want to know your opinion. It's important to me to know कि मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं. If you are the mother, what will you do? Or father? इसमें मदर का तो दिखाया, फादर को उसने बताया ही नहीं. In general, fathers are strict, right? So they do, mothers hide it from their fathers so that उसको बच्चे को ये बचा सके, शील्ड कर सके. यही होता है नॉर्मली. So तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को तो बताना ही पड़ेगा एक बार, मतलब you should talk to your parents, but पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
How should parents solve this problem? Right now I'm talking about oppressor को क्या करना चाहिए. यही situation होती उसने अपने father को बताया होता. What is the way the father should have acted? console the child. How to console it? Supposedly you are the father. What will you do? तुम्हारा बेटा कल तुम्हें फोन करके बोलता है कि पापा मैं नहीं कर सकता. क्या करोगे उस सिचुएशन में? You won't do anything. That's how you will phone on, off. That's it. Or you will say something. Console is a very, very big word, right? But how do you console someone? Somebody, तुम्हारे friends आते हैं तुम्हारे पास कभी किसी चीज़ के लिए भी help मांगे या console होने के लिए? Do they come to you? No. Why? Why do you think you can't go to him? You are his friends, right? तुम जाते हो किसी बात में किसी चीज में परेशान होते हो तो उसके पास जाते हो तो ये क्या करता है मोटिवेट करता है. तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. कि तुम मोटिवेट करते हो किस तरह मोटिवेट करोगे? इट्स द राइट वर्ड बट हाउ डू यू मोटिवेट सच अ पर्सन? हाँ जी बेटा आई वांट टू नो फ्रॉम यू. हर चीज हंसी नहीं होती बेटा. लाइफ सीरियस भी होती है और बहुत कुछ होता भी है लाइफ में जिसमें तुम्हें ऐसा सब करना पड़ता है. बहुत ठीक बोला. हो सकता है तुम्हें भी ना पता हो कि तुम ऐसा क्या करते हो कि फ्रेंड्स हैं नहीं हैं क्यों नहीं है. तो आई जस्ट वांट टू नो कि तुम कैसे मोटिवेट करोगे इस बच्चे को. कैसे मोटिवेट करोगे? ये कह रहा है मैंने नहीं कर सकता. व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन एज अ फादर? You can't do anything about it. You don't have an idea. Anyone who wants to volunteer and tell me कि better. Anyone who wants to volunteer and tell me कि what should have the father or the mother done in such a situation? My mind tells him that you can do anything and we have come so far after so much of hard work. Indulge with your seniors and talk with them. So the similar situation जैसे उसकी मदर ने बोला मे बी इन डिफरेंट वर्ड्स. कैसे बोला उसने? नंबर 1 इसने बोला कि हमें कि यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. तुमने पीजी तुमने इतनी मुश्किल से एंट्रेंस क्रैक किया. यू कैन डू एनीथिंग. दैट्स व्हाट आवर पेरेंट्स टेल देम. टेल अस. यस मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये बोलते बेटा तू कुछ भी कर सकती है. एंड दैट्स व्हाट आई टेल माय डॉटर टू कि बेटा तू कुछ भी कर सकती है. कुछ ऐसा नहीं है तुम्हारी लाइफ में जो तुम नहीं कर सकते हो. अगर तुमने ठान ली है डिटर्मिनेशन रखी है तो कर सकते हो. सेकंड, Indulge with your seniors. indulge with the seniors. How? They don't want to be indulged. Interact and spend time with them. They are saying कि चाय ले आओ ये कर दो. It's okay. And after that he will also get senior. Do the same thing. Okay, then they will become friends. So right now he has to just take it, suck it up, and just take it. Okay, that could be one point of view. Or He should be adaptive to the things. he should adapt to things. Yeah, you tell. Right. How to find her? She is absolutely right. There will be at least one person जिससे वो बात कर सकेगा. But how to find it? You just have to pass that moment and then go for that. कि सब सेम तो नहीं होते. Even teachers भी सब सेम नहीं होते. Right? There must be कोई ना कोई एक mentor बन रहा है आपका. ठीक है ना? और ये होगी बात पेरेंट्स की. There was another oppressor. कौन? सीनियर. सीनियर्स को क्या करना चाहिए कि उनका वो ऑप्रेस ना करे? They talked about 3 things कि why seniors oppress. Number 1, that they feel that they are superior. Number 2, that they are senior to them, then they can behave in certain way. And number 3, like he said, that it's a culture. So what to do about these 3 things? Seniors should rather help that person to learn the things they know. Supposedly तुम हर मोहित होते तो क्या करते? I would have tried to teach that person the things he How? Like then in that case there was suturing. So I would have rather helped that person to how to suture. And supposedly उसके हाथ ऐसे से कांप रहे हैं. Patient तुम्हारे सामने है. Would you let him do that?
No, ma'am, first I will show him how to do that properly and try to help lower his anxiety. How to lower his anxiety? By motivating that he can do it. Okay, motivation is number 1. Number 2. क्या कर सकते हैं? As a senior, we should try to stop that culture. That कल्चर को तो मैं मानती हूँ कि हमारे साथ जो हुआ है ज़रूरी तो नहीं कि हमारे अगली जनरेशन के साथ भी हमने वही करना है, नहीं ना करना है, ये तो मैं मानती हूँ कल्चर शुड बी ब्रोकन. रेस्ट और कुछ लेट्स थिंक अबाउट इट. बोलो बेटा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि क्या करना चाहिए सीनियर्स को? हाउ शुड दे एक्ट? मैम पहले तो जैसे देखा कि मेरा मोहित बोल रहा था और दूसरा भी बोल रहा था, तो एक दूसरे को बताना चाहिए ना आया रहना कर कि फिर कि अपन जो दवाई So you should actually tell the other person, other senior also कि हम भी इसी चीज़ से गुजरे हैं. Let us not do that. कल्चर उससे ब्रेक होगा. ठीक है. सेकंड, फिर जैसे वो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला केस है तो पहले तो हम करके बताएंगे कि कैसे सूचरिंग करनी है, तो उन्हें भी देख लें. अगली बार जब थोड़ा माइनर केस आई, थोड़ी होती कोई सूचरिंग वगैरह करने बोले तो वो कर दे. इट्स अ वेरी कॉमन कल्चर कि rather than teaching what we expect कि फर्स्ट ईयर को सब कुछ ही आता होता है. You should go and do everything. और वो मोस्टली गलतियाँ ही करता है और हम ह्यूमंस पे सीख रहे हैं. एंड वी ट्रीट देम एज कि चल ये तो हमारे ग्राउंड है, इसके ऊपर खेलो एंड ऑल दैट. वो नहीं करना है. We should be the ones who should respect life. Number 1, our duties towards the patient. We should respect life. That is there. And then, what should we do about these situations? कि जब आपने करना है तो खुद करके दिखाना है और उसकी इसने बोला था एंजाइटी लोअर करनी है. हाउ कैन यू डू दैट? एंजाइटी लोअर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, आप बताओ. कैन यू लोअर द एंजाइटी ऑफ समवन? वो कुछ बता रहा था और उसके सीनियर्स उसे और एंशियस कर रहे थे इस सिचुएशन में. ये एब्सोल्युटली राइट. क्यों और कैसे इसको ठीक किया जा सकता? कुछ भी, व्हाटएवर यू फील. कोई ऐसा ऑफ टाइम का तो क्वेश्चन नहीं है ये, राइट? वी आर जस्ट आस्किंग जनरल लाइफ. काम करना चाहिए कि कलर बिल्कुल ठंडा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. आप रोज ही करते हैं तो भी देख पहले बिल्कुल कि आराम से. ओके, जस्ट से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. देखो भी आ जाएगा. नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन, हमें नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट देना है. अगर हम आते सारी पहले इतनी सारी लाइट्स एकदम पेशेंट खून एंड ये सब पड़ा हुआ है, ऑलरेडी इट इज थ्रेटनिंग. एंड व्हेन और जो फर्स्ट ईयर है जो एंटर ही किया है विद हाई एस्पिरेशंस, में ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, और जब वो एंटर किया और हम उसको और ज्यादा एंशियस कर रहे हैं वैसे तेन किया अंदर इस तरह ये करेंगे हम तो मुश्किल और वो होगी उसके लिए. वी नीड नॉट हैव दैट. हमें क्या करना है उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए? वी हैव टू मेक की सिचुएशन काम करें. ठीक है, ये वाला इन्वायरमेंट ऐसा है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तो उसने बोला कि हाँ काम करो, उसको बोलो ठीक हो जाएगा, आ जाएगा तुझे. और क्या होगा? व्हाट एल्स कैन यू डू? तुम सीनियर हो, तुम अपने जूनियर को बोल रहे हो, वो बोलता है मुझसे तो नॉर्मल अभी सिचुएशन क्या होती है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा. तुम क्या बताते हो उससे? You'll do it कि हमने भी किया है. So yeah, you share your experience. जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था या मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो दिस वाज द थिंग दैट हैपेंड टू मी आल्सो. बट मैंने आगे जाके देख आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं कर पा रहा हूँ. ठीक है ना? तो ये वाली चीज बहुत जरूरी होती है. एक चीज उसने बोली थी कि सुपीरियर, दे फील दैट दे आर सुपीरियर. बेटा आप बताओ व्हाट टू डू अबाउट दैट सिचुएशन. इफ यू फील दैट यू आर सुपीरियर देन समवन, इज इट राइट दैट टू फील सच अ थिंग? व्हाई इज इट नॉट राइट? उसको बोल रहे थे कि वो एबीसी कॉलेज से आया है और हम एम्स में दिल्ली से, तो ऐसे नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? हम देन फील इंफीरियर. सो हमें किसी को इंफीरियर फील नहीं करवाना चाहिए. क्यों नहीं करवाना चाहिए? उसका कॉन्फिडेंस यस, उसका कॉन्फिडेंस किसी का ब्रेक करना. शायद तुम एक चीज में उससे सुपीरियर होगे भी, बट हो सकता है वो वाला लड़का EQ, उसका एम्पैथी क्वोशिएंट, उसका इमोशनल क्वोशिएंट, उसकी अदर थिंग्स, और
जिंदगी में आपको किस इंसान की जरूरत कब पड़ जाए ये नहीं पता होता. सो शुड यू बिहेव इन सर्टेन वे. आज तुम शायद इस लड़के को या किसी और को बुली कर रहे हो, कल वो तुम्हारे किस पोजीशन पे जाके तुम्हारे साथ वो होगा तुम्हें नहीं पता है. एंड मे बी आउट ऑफ गुडनेस दैट पर्सन विल नॉट डू आउट ऑल दैट, बट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू कि व्हाट यू आर. ऐसे सुपीरियर फील करके शायद उस चीज में कि हाँ मैं एम से बाहर आया हूँ, मैं टैग है मेरे पास, आई एम लाइक दिस, मे बी यू आर इनसाइड नॉट इवन अ गुड ह्यूमन बीइंग. So first of all, be a good human being. That's the first and the foremost thing I would say. कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे ये जरूर सिखाया था एक चीज, बेटा अच्छे डॉक्टर बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना है. और वो अच्छा इंसान जो होता है ये इस तरह की रिलेशनशिप्स में दिखता है. Don't make anybody else life a day even worse by saying something and hurting them. Right? एक और चीज बोली थी कि सीनियर्स का कल्चर. Have we covered all the points? नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट करना है, सीनियर को सीनियर नहीं फील करवाना, उसका दोस्त बनने की कोशिश करना है. येस देयर इज अ पीरियड वेयर यू टेल देम हाउ टू बी इन द ओटी एंड येस दैट हैज टू बी इन अ सर्टेन डिसिप्लिन्ड वे. वो चीज मैं भी मानती हूँ कि होनी चाहिए कि दिस इज द वे यू शुड एंटर. टोपी डाली हुई है नहीं डालनी है, दिस इज द वे, बट देयर आर वे. ठीक है, बी इफेक्टिव, बी डिसिप्लिन, बट क्रिएट डिसिप्लिन ऑल्सो, बट डोंट बी What? Condescending. मतलब आपको ये नहीं बोलना कि या तुम कुछ भी तुम इस तरीके इस टोन में अगर आप बोलोगे, will the other person receive that feedback? Will they accept it? Will they internalize it? No, they won't. ठीक है, अगर आम मतलब हुन पंजाबी च कितना कहांगे हीरा दस बोल बानी वधिया रखनी है. राइट? यू शुड नॉट से कि ये बिल्कुल ही ऐसा है कि इसको बिल्कुल ही कल हमने कि वो बच्चा दोबारा खड़ा ना हो सके. क्या ये बंदा दूसरी तरफ स्टेप ले सकता है? उसके घर वालों ने भी रास्ता बंद कर दिया, उसको यहाँ पर रहना नहीं है, वो क्या करेगा? यू शुड मतलब ये वाली बात ना आपके दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए. इट्स जस्ट अ मोमेंट, इट विल पास एंड द मोमेंट इट पासेस वी विल बी समवेयर. ठीक है. थर्ड कौन था इसमें जो ऑपरेसर्स के साथ साथ था? HOD, नर्सेस, टीचर्स. Were they whatever comments they made, were they wrong at all? चलो किसी कारण भी गया वो लेट तो हुआ नहीं. उसका उसने एक चीज बोली थी, ये हमारा हाई रिस्क प्रोफेशन है कि नहीं है? अगर वो प्यार से बोलेगा बेटा कल तुम पार्टी में चले गए थे, चलो लेट हो गए किसी भी कारण हो गए, हाई रिस्क प्रोफेशन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या वो इस चीज़ को सीरियसली लेगा? नहीं ना. सिस्टर को क्या करना चाहिए था जो नर्स थी? वो डिड शी बिहेव इन नर्स? याद है जो कह रही थी कि तुमने ऐसे जाके अपने सीनियर को बुला के लेके आओ, डॉक्टर साहब को बुला के लेकर आओ, इसको कुछ नहीं आता, इसने पेशेंट को मार देना है. Should you say these things in front of the patient? उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, उसका पेशेंट का भी ट्रस्ट हो जाएगा. दिस इज वन थिंग. ऑब्जर्व व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं एक्सेप्ट दिस सिचुएशन. हाउ टू डील इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स. यू आर अ टीम. नेवर एवर say anything bad about your senior, junior or anyone in front of others. लिफ्ट में जा रहे हो, एक दूसरे डॉक्टर के बारे में बोल रहे हो, कोई और लोग भी तो खड़े हैं, वो भी सुनेंगे ना. तो ये चीज हमेशा अवॉइड करनी है. क्या चीज है जो गलत है जो HOD होने दे रहा है? क्या चीज गलत है जो HOD होने दे रहा है? मैम जो टीचर वो बट उसको बहुत ही रूडली बिहेव कर रही थी. इवन रूड हो जाते हैं हम लोग कभी कि जब इनडिसिप्लिन हो. तो मेरी क्लास में रोज लेट आते हैं सारे, कितने बच्चे आते हैं. आई अलाउ इट, बट सम पीपल डू नॉट अलाउ इट. इट्स ओके नॉट टू अलाउ. वाई? बिकॉज इनडिसिप्लिन होता है. अब मैंने तुम्हें नहीं कहना तो तुमने आराम से आते ही रहना है. कई उस दिन क्लास में 20 मिनट्स हो चुके थे, आई हैड ऑलरेडी कवर्ड व्हाटएवर आई वांटेड टू कवर. उसके बाद तुम सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हो. राइट? तो ऐसा होना चाहिए. ठीक है, आई गिव यू लीवे, बट सीरियसली इसमें गलत तो नहीं है वो टीचर. कल उसकी क्लास में वो 8:45 पे पहुंचेगा.
वो डिसिप्लिन क्रिएट करना, आई डोंट से इट इज रॉन्ग, पर वो ओप्रेस हो रहा है इस चीज से। देयर इज अ थिन लाइन, देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन कि आप ओप्रेस कर रहे हो, ओप्रेस हो रहे हो, या फिर देयर इज अ नेचर ऑफ टेकिंग थिंग्स, हम उस पर भी आएंगे। बट क्यों, क्या चीज है जो गलत होने दे रहा है एक्चुअली? एनीवन उधर से बेटा, रेड चेक कर बोलो, क्या चीज है जो गलत होने दे रहे हैं? ऐसा एक्चुअली वो गलत होने दे रहा है। मतलब एनवायरनमेंट चेक नहीं करना। एग्जैक्टली, इसमें चेकिंग एनवायरनमेंट, उसकी सिस्टम्स वगैरह। नॉर्मली एक एचओडी को, बैठ जाओ बेटा, एचओडी को जो भी हो रहा है डिपार्टमेंट में वो पता होता है। डजंट ही नो कि द वे हिज पीजी इज बीइंग ट्रीटेड, ठीक है, वो खुद डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, बट इज इट हिज ड्यूटी टू एक्चुअली टेल देम कि दिस इज द वे यू शुड हैव बीन डूइंग थिंग्स, राइट कि नहीं? एंड नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि जो ओप्रेस हो रहा है उसको क्या चेंज करना चाहिए? मीन्स हिम, क्या चेंज करना चाहिए? हाँ, क्या चीज? बेटे खड़े होकर बोलो, बोलो बेटा। यू, हाँ, माइंडसेट, he should change his mindset. What should क्या होना चाहिए माइंडसेट? थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए। Positive approach. How to take things, right? Normally, how is he taking things right now? स्कूलों से ज़्यादा सीरियस है। हाँ? एकदम सारी सूचनाएं बैठ, बताओ। एक दिन में सारी सूचना सीख लेनी है। एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। याद है सही कि रोम बना था, बट राइट नहीं हुआ था, ठीक है? तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं आएगा। बट what was right he was doing, क्या ठीक चीज वो ठीक कर रहा था, he was trying for it, ठीक है? और माइंडसेट में क्या चेंज करना चाहिए? एक तो बिल्कुल ठीक चीज है कि एक दिन में तो नहीं आएगा, बट इज इट कॉमन प्रैक्टिस जब तुम नई चीज करते हो और जब तुम ह्यूमन लाइफ के सामने होते हो, डू यू गेट टेंशन? आपके हाथ कांपते हैं, होता है ना ऐसे? आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट डे, जब मेरे को एक बार इनिशिएशन करने भेज दिया था, देयर वर ऑल पीपल स्टैंडिंग अराउंड मी एंड मैं उन सबके सामने आ, मेरे खुद के हाथ कांप रहे थे। इट इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। सो उसमें क्या कुछ नहीं होता, हाथ ही कांप रहे हैं ना, अगली बार नहीं भी कांपेंगे जब एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो उसमें क्या है, माइंडसेट। अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि मेरे को एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, मैं एक ही दिन में ये भी कर लूँगा और मैं एक ही दिन में जो सबसे एक्सपीरियंस बनता है उस फील्ड में उसके जैसा हो जाऊँगा। वो तो नहीं हो सकता। विद एक्सपीरियंस शुरू में हाथ कांपने ठीक हैं, बट उसके लिए अपने आप पे इतना प्रेशराइज करना वो ठीक नहीं है, ठीक है? बैठो। और उसको क्या चेंज करना चाहिए? माइंडसेट उसने चेंज कर लिया, बोलो और क्या चेंज करना चाहिए? तुम खुद बोलना, कुछ बोलना है तुझे, तूने तो एक्ट किया है। बताओ क्या चेंज करना चाहिए? माइंडसेट ओनली, दैट्स द ओनली थिंग ही हैज टू चेंज। माइंडसेट में एक दो चीजें तो मैंने बोल दी। डू यू थिंक और कुछ माइंडसेट में चेंज करने की जरूरत है? लर्निंग एटीट्यूड। व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एटीट्यूड? जो भी जहाँ भी कुछ सीखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। व्हाट भी, जैसे मैंने तो ऑप्शन की हुई है, लेकिन व्हाट आई डिड वाज आई लर्नड इंटुइशन, आई लर्नड सेंट्रल लाइन, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स थी वो इमरजेंसी में जाती थी, मुझे होता था कुछ ना कुछ स्किल तो आएगी, और सीखा हुआ कभी आपका वेस्ट नहीं जाता है। सो ट्राई टू लर्न आउटसाइड व्हाट आई यू, मतलब जो आपको मिल रहा है उससे भी। हार्ड, मतलब दैट्स व्हाट आई एम लाइक वेरी सुपर हार्ड वर्किंग इन एवरीथिंग व्हाट एवर आई विल डू। अगर मुझे अपनी डॉटर का भी कुछ भी करना है तो आई विल डू एन एक्स्ट्रा वर्क, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा आवर्स डालूंगी, मैं खुद पढ़ूंगी और वो सब उसको कराऊँ, बट दैट्स मी। यू, दिस थिंग मे नॉट वर्क फॉर यू, बट अपना एक ये एटीट्यूड कि अपने दायरे से बाहर आपको सीखने को मिलता है, क्यों नहीं सीखना है? मेक योरसेल्फ सिग्निफिकेंट, जैसे मतलब मेक योरसेल्फ सिग्निफिकेंट। हाउ टू मेक योरसेल्फ सिग्निफिकेंट, दैट आई वांट टू डू।
किसी के लिए भी आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। किसी के लिए वैल्यू डालनी क्यों है? स्किल अपनी इंक्रीज करो। स्किल अपनी इंक्रीज करो अपने लिए, यस, नॉट फॉर समवन एल्स। तुम अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम किसी और के लिए हो नहीं हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? यू डोंट लिव फॉर अदर्स, लिव फॉर योरसेल्फ। ओके, अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। जब तुम खुद को लाइक करने लग पड़ोगे, भाड़ में जाए कि लाइक करते ना करें, क्या फर्क पड़ता है? अपने आप की फेवरेट बनो, राइट? हाँ जी। और कुछ कैसे चेंज करना चाहिए किसी पूछ के, तुम बताओ। वो कह रहे थे कि मैंने आगे नहीं करना। So one thing more, he should love himself. Then only he will love life and he will move forward. ऐसे अगर डिफिकल्टीज आती है तो छोड़ना नहीं चाहिए। He should face it. वो कह रहा था कि मैंने आगे पढ़ना नहीं। He should face it head on, right? Face it head on हम बहुत easily कह देते हैं, but like is it that easy? It's not. Difficulties are part of, देखो अगर लाइफ बोरिंग हो जाए, कुछ भी like this, कुछ भी अप नहीं कुछ भी डाउन नहीं, खुद ही बोर नहीं हो जाओगे? मैं नहीं कहती कि तुलसी वाले सीरियल्स में जैसे वो होती है ना कि कुछ कुछ बनाती रहती है, कुछ कुछ वो लोग करते रहते हैं, डोंट डू दैट। बट लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं जस्ट फेस देम। अप आया तो डाउन भी आएगा और डाउन आया तो फिर से अप आएगा ही आएगा। सो द थिंग इज, अगर इतनी सारी डार्कनेस आती है ना, उसके बाद लाइट आएगी ही आएगी, राइट? डेड टनल्स तो होती नहीं है तो फिर अपने आप लाइट क्रिएट करो, उसमें तोड़ दो वो दीवार, ठीक है ना? आज ये फर्स्ट ईयर है, कल सेकंड ईयर में होगा तो सही ना, और 3 साल की पीजी है, 3 साल के ऊपर तो नहीं ना आपको बंद कर सकते, राइट? तो 3 की 4 कर देंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उनको भी क्या पाल के रखना है ना? सो whatever the moment shall pass and you should bear it, ठीक है? Anything else anybody wants to add now? ठीक है। And for the participants, what we need to do? तो तालियों का शोर इतना होना चाहिए कि सारे कॉलेज में गूंजे, राइट?